ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ 2026 ਦੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰੂਲਸ, ਜੋ ਇਹ ਲੋ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਮਾਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਡਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਲਈ गलत ਨੇ? देखो, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक था, प्रशासन ने वाटर कैनल चलाया, जिससे उस बच्चे की छाती पे, चेस्ट पे जो वाटर का जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर की वजह से शाम को उसके दर्द हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेते उसकी डेथ हो गई। इस वजह से वो चला गया। इसका ना तो उसको मुआवजा मिला, ना कोई प्रशासन का कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ना उसके घर वालों को उसकी वाइफ के लिए सरकारी नौकरी का जो वादा किया सरकार ने, सरकार हर वादे से मुकर चुकी है। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? पोस्टमार्टम हुआ उससे पहले शाम को तो उसका दाह संस्कार ही करा दिया सरकार ने। पोस्टमार्टम होया वैसे? पोस्टमार्टम तो हुआ है, अब रिपोर्ट सरकार है, सरकार अपनी रिपोर्ट देती है। लेकिन उसका दाह संस्कार जैसे शाम को 5 बजे अगर वो एक्सपायर हुआ है तो 6 बजे दाह संस्कार लग गया। इतनी जल्दी क्या थी सरकार को? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਹੈ, ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ जनरल कैटेगरी ਦੇ स्टूडेंट्स लिए गलत है? देखो, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो डेथ सर्टिफिकेट है ही। आप एक चीज़ तो पहले ST एक्ट आया था, जब सरकार ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रोक लग चुकी थी कि ये लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, उसको लागू कर दिया। आज जनरल OBC के जो बच्चे हैं, ST SC एक्ट में कितने लोग अंदर हैं आप भी जान रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग अंदर हैं। उसी प्रकार से ये जो UGC कानून लाए हैं, ये हमारे बच्चों के लिए ख़राबी है। अगर हमारी किसी बच्ची को, सुंदर बच्ची है, उसको किसी ने ऑफर दिया, उसने मना कर दिया, तो प्रशासन तो ये पूछेगा भी नहीं कि भाई उसने कुछ बोला है कि नहीं बोला। पहले तो सीधा अंदर कर दो, उसके बाद में जाँच होगी। ये ਝੂਠੇ ਜੋ ਹੈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? लगा सकते हैं और यही लगेंगे। और इस नाल मतलब उनकी पढ़ाई खराब हो सकती है, भविष्य खराब हो सकता है। भविष्य खराब है, पढ़ाई का भविष्य खराब है, बच्चे का भविष्य खराब है, उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार ही हो गया। और रिजर्वेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रिजर्वेशन रियल में तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आज समझे नहीं, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीना अभी एक कलेक्टर है, उसके बच्चे को अगर आप रिजर्वेशन देते हो तो कहाँ तक सही है? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ EWS, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, तमाम ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ EWS ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ? EWS का फ़ायदा हो रहा है 1%। हाँ, 1% फ़ायदा हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। लेकिन नुकसान भी हो रहा है उसके साथ साथ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण हटा ही दें तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। आरक्षण दें, उसकी जांच करके उसकी योग्यता के अनुसार उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आज 95% अगर कोई स्टूडेंट बच्चा लेके आता है, वो तो बेटा है और 35% वाला डॉक्टर बना बेटा है। और जब ये नेता नांगल जाते हैं तो इनको डॉक्टर चाहिए, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, सिंह। ये उस ST SC वाले से 35% ਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खूब पूछते साहब, हमारे जयपुर में हमने खूब देखा है। ਇਲਾਜ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ये तो पूछ लेता है डॉक्टर का नाम क्या है, ये हर इंसान पूछ लेता है। ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं तो ये तो पूछ लेता है भाई डॉक्टर कौन इलाज करेगा, ये तो पूछता ही है हर इंसान। ਪਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, नहीं जाति ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ एक्सपीरियंस कहाँ होगा? 35% वाले के पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ मर जाऊँ, लेकिन 35% वाले से ऑपरेशन नहीं कराऊँ। 35% ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। फर्क किस लिए होता है?
35% वाला तो नहीं जा सकता डॉक्टर। आजकल बढ़ रहे हैं, -40 वाले भी बन सकते हैं। ये सरकार ऐसा नियम ला रखी है कि -40 वाले भी बन सकते हैं। और सामान्य वर्ग के बच्चे जो 90% लेते हैं वो बैठे रहते हैं घर पे, वो तो कर रहे हैं आंदोलन। और जो 40% 45% है वो अधिकारी बन के बैठे हैं। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हम कदम यही है कि हमारे जो आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ महिपाल मकराना जो लीड कर रहे थे, और हम उनकी लीडर की भाजपा सरकार से क्या बात हुई हमें कोई मतलब नहीं, ना हमें भाजपा सरकार से मतलब, ना हमें प्रशासन से मतलब। हमें मतलब है महिपाल मकराना से। वो पेमेंट महिपाल मकराना उनके घर पे देंगे 1 करोड़ रुपए, और बच्चों के जो लगे हैं उनको देंगे। आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 से 12 नाम तो मेरे पास है जो जिनकी चोटें लगी हैं। और भी कोई भाई हो तो मुझे नाम लिखवा सकता है। उन सबको पेमेंट दिलाने की गारंटी मेरी है, और उसका पेमेंट महिपाल सिंह मकराना देगा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? मतलब किस कारण? उसका नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व महिपाल सिंह मकराना कर रहे थे। तो सरकार देवेगी ना? नहीं, उन्होंने सरकार से क्या वार्ता की तो वो जाने ना, बता तो कहाँ रहे। ये पब्लिक डोमेन पे वो बातें पीछे हट गए ने। हाँ, पीछे हट गए जब तो वो देंगे, हम दिलाएंगे उनसे। वो राजस्थान में जब घुसेंगे तब उनसे दिलाएंगे कि भैया यहाँ पेमेंट देना पड़ेगा आपको, अगर आपको राजस्थान में रहना है तो। नहीं, हम समाज से बहिष्कार करेंगे इस आदमी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बिल्कुल आज जिस तरह राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने उजागर सिंह डाबला राजस्थान के इन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई यूजीसी इक्विटी रेगूलेशन के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन होया, उस दौरान इन्होंने कहा कि कई की मौत जिथे एक मौत हुई तो कई जो है जख्मी भी होए कि उन्होंने मुआवजे हजे तक नहीं मिले है। तो महिपाल सिंह मकराना जो वो भी अध्यक्ष जो है ने इस राजपूत करनी सेना के, उन्होंने तो सवाल पूछ रहे हैं कि वो पीछे क्यों हटे है। तो कह रहे हैं कि असीं उन्होंने तो हुण मुआवजा दवावांगे। तो एक आपसी क्लैश भी कितने ना कितने जो है लग रहा हुण वेखना होगा मुआवजे कदों मिलणगे और की इस जो है यूजीसी इक्विटी रेगूलेशनस का अगे की भविख होएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दे नाल अंकुश कोहली, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।